Namaste. I, Jyotia Neha Sharma, Jyoti Vidyapit Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So, in last lecture, we studied about the parity method of error detection and correction technique, and in this lecture, we are discussing the checksum method. What is checksum method and how checksum method exactly works with the data. So, what is checksum basically? Checksums are similar to parity bit, except the number of bit in the sums is larger than the parity, and the result is always constrained to be zero. This means if the checksum is zero, error is detected. A checksum of messages an arithmetic sum of code of word of certain line, and the sum is stated by means of one's complement and stored or transferred as a code extension of actual code word at receiver. A new checksum is calculated by receiving the bit sequence from the transmitter. So basically, in checksum error detection, data is divided into k segments, each of m bits. And in the sender's end, the segment are added using uh, one's complement arithmetic to get the sum, and the sum is complemented to get the checksum. So the checksum segment is sent along with the data segment, and at the receiver end, all the received segments are added using one's complement to get the sum, and then the sum is again complemented. So if the result is zero, the received data is accepted, otherwise discarded. क्योंकि अगर उसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो नहीं है, मतलब कि रिसीवर ने जो डेटा एक्सेप्ट किया है उसमें एरर है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ एरर है और फिर उसे करेक्ट करके दोबारा भेजेंगे. So checksum is all about this. So we can see the checksum method with the example how this is exactly works. So here you can see the original data frame 1001 1001 and similarly 1 2 3 4, right? So k equal to 4 and m equal to 8. What is here m is 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 bit data है, तो m equal to 8 हो गया. अब कितने सेगमेंट है? 4 सेगमेंट है. 1 2 3 4, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया. अब ये हमारा सेंटर है, हम क्या करेंगे इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, डू यू नो अबाउट वंस कॉम्प्लीमेंट, हाउ वंस कॉम्प्लीमेंट वर्क? सो बेसिकली हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड करना होता है, राइट? So 1 0 0 1 1 0 0 1 and then 1 1 1 0 0 1 0. So हम इनको करेंगे ऐड. पहले हम इनको सिंपल ऐड करेंगे, फिर उसमें वन वंस कॉम्प्लीमेंट तो वन ऐड करके फिर ऐड करेंगे, राइट? So here you can see 1 0 is what? 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 and 1 1 is 1 0. So here you can see यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जितना हमारा एम है, अगर उससे एक भी बिट या दो भी बिट या तीन भी बिट ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसकी रैपिंग करेंगे. ठीक है, तो रैपिंग करेंगे हम इसकी, तो यहाँ पे हमारा 8 ऑलरेडी हो चुका है. यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो तक हमारे 8 हो चुके हैं और हमारा एक बिट एक्स्ट्रा है. तो हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे. मतलब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मूव करेंगे, नीचे लेके आएंगे और दोबारा एडिशन परफॉर्म करेंगे. तो नाउ 1 1 is 1 0, then 1 1 is again 1 0, then 1 0 1, then 1. सिमिलरली इसको उतार देंगे क्योंकि नीचे अब कोई भी बची नहीं है, डिजिट है नहीं, तो सेम ही आंसर मिलेगा. देन हम नेक्स्ट बिट उठाएंगे 0 0 1 0 0 1 0 0, तो हमारा थर्ड सेगमेंट है और इसका हम एडिशन करेंगे. तो वंस इसका हम एडिशन करेंगे सिंपल 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, then 1 1. So here is a 1, then again 1 0 0 and then 1 1, क्योंकि एक कैरी चल रही है इस पर, तो 1 1 1 0 एंड यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 and 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो हमें क्या मिला? 1 0 1 0 0 0 0. नाउ हम क्या उठाएंगे? नेक्स्ट उठाएंगे 1 0 0 0 1 0 0. तो हमने नेक्स्ट फोर्थ सेगमेंट उठा लिया. यहाँ पे फिर से एडिशन परफॉर्म किया 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1 1 1 0. अगेन हमारा एक बिट ज़्यादा मिल गई हमें, हम इसकी रैपिंग कर देंगे. हम यहाँ पे इसको लेंगे और दोबारा एडिशन परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया? 0 1 1 और बाकी हमने एज इट इज उतार दी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका
इन्वर्ट करेंगे, मतलब कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, कॉम्प्लीमेंट्री है ना क्योंकि 1 कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे 1 कर दो और जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे 0 कर दो। तो ये हमारा क्या आ गया, चेकसम आ गया। ठीक है, अब ये हम किसको भेजेंगे, रिसीवर को भेजेंगे। रिसीवर को क्या मिला, 1 1 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने भेज दिया इसका चेकसम। ठीक है, अब रिसीवर के पास में ये डेटा एज इट इज उठ के जाएगा, तो रिसीवर की साइड पे भी ये पूरा परफॉर्म होगा। ठीक है, तो देखें कैसे परफॉर्म होगा। तो पहला सेगमेंट क्या हमारा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे उठाया। सेकंड सेगमेंट उठाया, इन दोनों का सेम जैसे यहाँ पे एडिशन किया था वैसे यहाँ पे एडिशन कर दिया। ठीक है, फिर उसका रैपिंग करी, फिर से ऐड किया, फिर थर्ड सेगमेंट को लेके आए, उसका दोबारा एडिशन किया, फिर फोर्थ सेगमेंट को लेके आए, यहाँ पे अगेन रैपिंग मिली तो दोबारा ऐड कर दिया इसको। उसके बाद क्या किया है हमने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि 0 था। हाँ सॉरी, अभी ना यहाँ पे इसके साथ में ये बिट भी जाएगी। ठीक है, तो 4 तक तो हमें एज इट इज हमें मिल गया। और फिफ्थ इसके साथ में क्या ऐड होके गया है, फिफ्थ जो है वो हमारी चेकसम बिट होती है। तो जो चेकसम का डेटा है वो यहाँ पे अटैच होके जाएगा, तो 1 2 3 4 के बाद जो फिफ्थ सेगमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, चेकसम बिट होगी। तो चेकसम बिट यहाँ पे क्या है, 1 1 0 1 1 0 1 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 0 1 1 0 1 0। अब इसका हम करेंगे सम, तो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, हमने यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे भी हम कॉम्प्लीमेंट करके फाइनल रिजल्ट हम लेंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अब यहाँ पे सारे हमें क्या मिल गए, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0। सारा 0 मिल गया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ पे 0 नहीं मिलता मतलब कि इसमें एरर है, और फिर हम वो एरर को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेकसम मेथड। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि यहाँ पे वर्ड्स में, स्ट्रिंग्स में वर्ड्स होते हैं बेसिकली, तो उसके सेट में डेटा जाता है। तो सेंडर ने अगर भेजा 7 11 12 06, तो इसका एडिशन कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, सेंडर साइड में क्या भेजेंगे पर हम -36। -36 यहाँ पे इसलिए भेज रहे हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि रिसीवर के साइड पे जब डेटा जाता है तो वो ऐड करता है पेरिटी बिट्स को। तो पेरिटी बिट्स जब ऐड होगी तो 36 + 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए कि 0 होना चाहिए, क्योंकि वो 0 पे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे -36 भेजते हैं। ठीक है, अब वो रिसीवर साइड पे जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, 36, और सेंडर पे क्या था, -36। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और हमारा डेटा एकदम एरर फ्री है, ये हमने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एरर होती तो हम फिर एरर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, so this is all about basically in checksum method you just need कि आपका जो भी डेटा है फाइनल डेटा वो 0 होना चाहिए, इधर इन वंस कॉम्प्लीमेंट और in this simple checksum method. It's a simple addition, so this is known as simple checksum method, and the above one is known as ones complement checksum method, because here you can do is ones complement, right. So you have to ensure this कि आपको इसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट पता है और आपका बाइनरी एडिशन करना आता है अच्छे से, और आपको लास्ट में ये भी ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर मिलने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा गलत आंसर आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास, थैंक यू सो मच।